نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے CNBC۔ اس وقت آج پھر میں موجود ہوں حاجی عبدالرزاق اگر صاحب کے آفس کے اندر، اور جو انہوں نے رمضان میں ایک انٹرویو دیا تھا اس کے حوالے سے بڑا ہی پریشر آیا گورنمنٹ پہ، سمجھیں یا گورنمنٹ تو کئی بہانے کرتی کرنے، لیکن انہوں نے کیونکہ ایک سیاستدان بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں اور فلاحی کام بھی بہت کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی، تو انہوں نے جو رمضانوں میں انٹرویو دیا تھا اس کے حوالے سے گورنمنٹ پہ جو پریشر پڑا تو انہوں نے کئی بہانے کر کے اور کہا کئی چیزوں پہ ریٹ کم کیے۔ تو آج میں آ کر لے کے چلتا ہوں حاجی عبدالرزاق کے پاس کہ آج وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، آئیے چلتا ہوں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے رمضان میں جو انٹرویو دیا تھا اس کا بڑا اثر پڑا ہے کراچی شہر کے اندر، بلکہ پورے پاکستان میں اثر پڑا ہے اور ریٹ کافی چیزوں کم ہو گئے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور آپ نے مجھے پھر موقع دیا، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ قدرتی میرے دل میں کچھ چیزیں آئی تھی اور میں نے اس میں انٹرویو میں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 3-4 دن بعد کچھ عمل ہوئی ہیں چیزیں، الیکٹرک کے ریٹ کم ہو گئے، پھر ٹرمپ صاحب نے بھی جو کچھ کیا اس کے بارے میں نے بولا تھا کہ امریکہ کے جو ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا جو ہے اس کا سینیریو چینج ہو جائے گا۔ تو ٹرمپ صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے کافی اوپر نیچے کیا، لوگوں کے ٹیرف وغیرہ یا ڈیوٹیاں وغیرہ جو بھی لگا دی ہیں ملک کے اوپر، اس کے سے بھی بڑا اثر پڑا۔ پھر انہوں نے 3 مہینے کے لیے ریورس کر لیا، جو چائنا کو چھوڑ کے ڈیوٹیاں جو بھی لگائی تھی، تو اس سے بھی اسٹاک ایکسچینج میں بڑا اپ ڈاؤن ہوا، مارکیٹوں میں اپ ڈاؤن ہوا، مگر لوگوں کو ذہنی ٹارچر ہوا اور نقصان بھی ہوئے کافی لوگوں کو۔ یہ مگر اچھی بات نہیں ہے پالیسی اس طرح کی لوگوں کو چینج کرنا راتوں رات، کہ کئی لوگ اس پالیسی کی وجہ سے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کئی بیمار ہو گئے، تو یہ اچھا نہیں ہوا جو بھی ہوا۔ یہ جو ٹرمپس کی جو پالیسی کی وجہ سے دنیا اس وقت بہت پریشان ہے، اور اس وقت جو ہے ہماری کنٹری بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو چھوٹی کنٹریاں ہیں ان کو ہم چھوٹی کنٹری کہیں گے، پاکستان ہوا، سری لنکا ہوا، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، یہ کافی کنٹریاں پریشان ہیں، ان کو بھی کافی پرابلمس ہوئے ہیں، ان کے انویسٹمنٹ کے لیے جو لوگ کرا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایکسپورٹ وغیرہ جو کر رہے ہیں پاکستان سے وہ کافی پریشان ہیں اس وقت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کے بعد جو ریٹ کم کیے گئے تو یہ کم رہیں گے، یا کیا سمجھتے ہیں دوبارہ یہ اس پہ کچھ کریں گے اس پہ؟ یار اصل میں یہ ہماری جو کنٹری ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ IMF کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے اور IMF کے ڈکٹیشن لیتے ہیں یہ لوگ۔ یار ان کو یہ ہم لوگ کا کیا قصور ہے یار، جو کنٹری کی عوام کا قرض جو لے رہے ہیں، اتنا قرض لے رہے ہیں ملک، یا سوچ سمجھ کے لیں عوام کے اوپر، یہ سارا جتنا بھی قرض کا جو ہے نقصان سارا عوام ہی بھگت رہی ہے، تو عوام نے کیا قصور کیا ہے یار؟ IMF کی وجہ سے یہ ڈکٹیشن ان کو ملتا ہے، ہر وقت پریشانی میں ہوتے ہیں، کہ نہ پیٹرول کے بھاؤ گرا سکتے ہیں، نہ ڈالر کے بھاؤ گرا سکتے ہیں، نہ الیکٹرک کے بھاؤ گرا سکتے ہیں۔ بیچ میں کوئی پراپرٹی کی کوئی پالیسی آنے والی تھی وہ بھی ریورس ہو گئی، تو ہم تو یار کوئی ایک طرف ڈکٹیشن سے یہ ملک چل رہا ہے ہمارا، تو اس طرح تو اتنی بڑی جو آبادی ہے 24.5 کروڑ کی آبادی، یہ کس طرح چلے گی یار، اور کس طرح یہ سروے ہوں گے؟ ہم کو تو ہمارے حساب کتاب سے کنٹری کو چلانا پڑے گا، اور ہماری جو کنٹری کی اسٹرینتھ ہے، جو بھی پوزیشن ہے، اس پالیسی پہ چلے، کیونکہ ہمارے یہاں غریب طبقہ بہت ہے، تو امیر تو چند امیر ہیں، ان کا تو ہر کام ہو جاتا ہے، نہ ان کو تو کوئی پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے۔ غریبی آدمی مر رہا ہے اس وقت کنٹری کے اندر، اور غریبی سارا الیکٹرک وغیرہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گھر مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، کنسٹرکشن والوں کو دیکھو، انہوں نے بھی حد بچائی ہوئی ہے، کدھر کدھر ساری جگہ پہ جو ہے کمرشل
इलाके, बादराबाद जैसा इलाका, इतना अच्छा इलाका, आलमगीर रोड, इनमें चंद बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है इन्होंने सारा इधर कमर्शियल करा करा के इतनी हाई राइज बिल्डिंग बना ली है और उन्होंने बेहिसाब लोगों को महंगे फ्लैट दिए हैं। इनको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो जितने हैं बड़े लोग, इनको कोई पकड़ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सर आपने बड़े बड़े लोगों की बात की, सियासतदान को तो चाहिए गरीब आदमी, ताकि वो नारे भी लगाए, भूखा भी मरे, वोट भी वही दे, जूते भी वही खाए, तो गरीब तो पैदा ही मरने के लिए हुआ सर। यार गरीब आदमी तो हमारी कंट्री में बेचारा, मैं बोलो ना, चक्की का आटा जब बनता है ना, उसी की तरह बेचारा पीस रहा होता है। वो हर वक्त बेचारा ऑक्सीजन पे होता है, उनके राशन वगैरह, खाना पीना, इलेक्ट्रिक के बिल, स्कूल की फीसें, बेचारे परेशान हैं। दवाइयों के अंदर, डॉक्टरों के पास, हर जगह बेचारे अजियत है। कोई इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जब इलेक्शन हो जाते हैं उनके बाद उनको कोई टिश्यू की तरह, पेपर की तरह फेंक देते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। यार ये कोई देखो, जाति है, जाति नहीं करो खुदा के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते। मरना सबको है, सभी इंसान है अल्लाह के नज़दीक। गरीब और अमीर में कोई नहीं है, उधर ऊपर सब इंसाफ है, इंसाफ देना पड़ेगा। आप इंसाफ दें, लोगों के साथ जाति नहीं करें। अभी देखो ना, ये खारादर वगैरह में जो ये बिल्डिंग माफिया हैं, उन्होंने अपनी जो चौधरात की हुई इलाके वाइज वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डिंगें खाली कर रहे हैं, लोगों की बिल्डिंग के ऊपर कब्जे हैं और किराए ले रहे हैं, हर जगह पे मनमाने पैसे दे रहे हैं लोगों को, उनके घरों को खाली करा रहे हैं। ये जाति हो रही है, कई टाइम से जाति हो रही है। लोगों को पता है, हमारे सियासतदानों को पता है, हमारी गवर्नमेंट के लोगों को पता है, हमारे पुलिस के लोगों को पता है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं, क्या थे और क्या हो रहा है, और उनके बैकग्राउंड में कौन है। इतनी बड़ी जाति हो रही है, खारादर, नानकवाड़ा, ये रंछो लेन, सदर, हर इलाके में ये माफिया है। ये पूरा माफिया के गरीब लोगों को टॉर्चर किया हुआ है। यार चंद लोग हैं, इनको सालों को अजियत दो, इनको पता चले क्या होता है। यार लोगों को इतना तंग कर रहे हैं, यार लोगों की नींदें उड़ाई हुई है, लोगों की पूरी बिल्डिंगें कब्जा की हुई है, पूरी जमीनें कब्जा की हुई है, समझे ना। सब इसमें गवर्नमेंट के लोगों को पता है, सारे बड़े लोगों को पता है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जनरल साहब, जनरल चीफ स्टाफ आर्मी परवेज, जनरल आसिफ मुनीर साहब को, जनरल आसिफ मुनीर साहब को मैं बोलता हूँ, आपको सलाम है, आपको स्टेप लें ये कराची के लोगों को, और चंद ये जो क्रिमिनल लोग हैं, समझे ना, इनकी आप तहकीकात कराएं और इनके ऊपर पूरे एक्शन लें, समझे ना। उनकी पूरी नीचे से ऊपर की स्टोरी निकालें, क्या है क्या नहीं है, और ये किस टाइप के लोग हैं। ये पूरी इधर माफिया चल रहा है, ये लोगों को बिल्डिंग अजियत दे रहे हैं, तो ये लोगों को इंसाफ दिलाओ। लोग रो रहे हैं, कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। लोगों से पैसे ले लेते हैं और बिल्डिंग को ट्रांसफर नहीं कर रहे, अजियत दे रहे हैं लोगों को, समझे ना। पूरी बिल्डिंगों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, होटलें बना के बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट बना के बैठे हुए हैं, मार्केटें खोल के बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों की जमीनों पे कोई नहीं पूछता है इनको, समझे ना। मैं मेयर को भी बोलूँगा, समझे, मुर्तजा वहाब साहब को, वो भी जरूर एक्शन ले पूरी अपनी तरीके से। वकार मेहंदी साहब है, सईद गनी साहब हैं, जो कराची के करते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग एक्शन लो, लोगों को अजियत दे रहे हैं यार। आप क्या किधर बैठे हैं? लोगों को इंसाफ दिलाओ यार। जब आप आए हो, कितनी दफ़ा आप सीट पे आ चुके हो, क्या क्या हो रहा है आपको नहीं पता। इस कंट्री के अंदर, इस शहर में आप भी रहते हो, बड़े पले हुए हो, लोगों को इंसाफ दिलाओ। लोग रो रहे हैं यार, लोगों को धक्के खा के थक गए हैं। आप लोगों को इंसाफ दिलाओ, खुदा के वास्ता, आपका रसूल का वास्ता है, इंसाफ दिलाओ, समझे ना। मैं उसको भी सलाम करता हूँ, ओस्मान अंगोरा साहब को भी, उनको भी पता है, सारा इलाका जानते हैं, वो एक चीज़ जानते हैं। उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि भाई लोगों को इंसाफ दिलाओ। लोगों के आप काम करने के लिए आए तो काम करें, और लोगों को काम करके दिखाएं आप, समझे ना। लोग ऐसे भी कई लोग हैं कि पीपल पार्टी को इस्तेमाल करते हैं, और पीपल पार्टी के से कोई उनको मोहब्बत नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और पीपल पार्टी का नाम इस्तेमाल करके जब वक्त आता है तो काम करवा लेते हैं। ऐसे लोगों से भी बचो।
जो कि टेम्पररी लोग हैं, जो आपको पता है कौन क्या है कौन कौन नहीं है, समझे ना। तो जो हमारे साथ है डू एंड डाई पीपल पार्टी के अंदर, उनको देखो, उनके इंसाफ देखो, उनके फैसले करो, समझे ना। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं चेयरमैन साहब को भी बोलता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब को, कि चेक एंड बैलेंस करें लोगों का, जो लोगों के साथ जाती हो रही है उसके लिए आप एक GID टीम बनाएं और चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें। मैं सदर साहब को भी, हमारे कोर्स चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके अब सेहत अल्लाह ताला दे, अब इंशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी हो गई है और जल्द से जल्द इस चीज़ों को ये एक्शन ले और लोगों को चेक करें। तो जरदारी साहब पुराने लोगों को जानते हैं और एक एक लोगों को जानते हैं कौन क्या है, पार्टी में भी एक एक लोगों को जानते हैं और पार्टी के बाहर वालों को भी जानते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको हल करें। लोग आपको दुआएं देंगे सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लोगों के असल जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप मैदान में आए, समझे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर लोगों के लिए आप मैदान में आए, लोगों को इंसाफ दिलाएं। जो चंद क्रिमिनल लोग हैं उनसे लोगों से साफ करें, लोगों को जो अजियत देते हैं, समझे ना, उनको साफ करें। और जो भी काम है लोगों के, जो नाजायज बिल्डिंग है उनको उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, नाजायज फ्लोर बनाए गए इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, समझे ना। नक्शे में दिखाते क्या है और बनाते क्या है, इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। लोगों के जो सोसाइटी के एरिए हैं, जो रहने के हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। 4 बिल्डिंगें बनी हुई है और इलाके में इतना रश हो रहा है, फिर पानी का सिस्टम नहीं है। सिस्टम पहले से बनाए, जहाँ अगर जो कमर्शियल करना है तो सिस्टमेटिक बनाए और सबको एक ही परमिशन दे। 20 फ्लोर तो 20 फ्लोर बने, 22 बने तो 22 बने। एक फ्लोर एक बिल्डिंग जो है छोटी बनती है, एक बड़ी बनती है, तो उससे एलिवेशन में भी प्रॉब्लम आता है और इलाका वाइज भी प्रॉब्लम आते हैं। तो इलाका वाइज कुछ देखें। आजकल ये सारी जगह पे रोडों का काम हो रहा है, ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक एक डेढ़ घंटे तक घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ट्रैफिक का भी सिस्टम सही करें, लोगों को कुछ सहूलतें दें, पानी की, बिजली की। जब तक बिजली के जो सही रेट नहीं होंगे हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बिजली के स्पेशल रेट देने पड़ेंगे। दुनिया भर से हमको कंप्लीट करना है, एक्सपोर्ट करना है। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री का जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारा कर्जा उतरेगा। जब फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं आएगा, एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, तो कंट्री किस तरह चलेगी। इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, समझे ना, एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो उसके लिए भी आपको कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोगों को सही मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को सिस्टम पे लाना पड़ेगा। अब ये चाइनीज लोग आए हैं, एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसके अंदर भी देखो आपको कई चीज़ें वो हैं। चाइना के अंदर कई इंडस्ट्रियाँ हैं, नई नई इंडस्ट्रियाँ लगाओ, नई नई चीज़ें ला के दिखाओ। जब आप एक तरफ कारोबार को जो है इंडस्ट्री लगती है तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो इतनी महंगी हो जाती है, तो वो लोग जो है उसको बेच नहीं पाते या उसको कंप्लीट नहीं कर पाते मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर कंप्लीट करने के लिए आपको एक GID टीम बनाओ, जो कि उसका कभी कोई आप ऐसा काम करते हो कि चंद लोगों को यहाँ फायदा हुआ मुल्क के अंदर और बाकी लोगों को नहीं हुआ। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में 2% और 5% में लोगों को इंडस्ट्री की लोन दी गई, चंद लोगों ने पैसा उसको मिले, चंद बड़े के लोगों को, गरीब लोगों को तो नहीं मिले, अमीर लोगों को मिले, उनको फायदा मिला। उनको दूसरी सहूलतें भी मिलती है एक्सपोर्ट की। ESF में वो माल मंगाते हैं बगैर ड्यूटी, बगैर सेल टैक्स का। तो चंद लोगों के लिए कंट्री है, कंट्री में 2 कानून चल रहे हैं। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही गरीब है, अमीर आदमी के लिए तो बड़ी फैसिलिटियाँ हैं, उनके हर काम हो जाते हैं, हर चीज़ उनकी हो जाती है। तो ये देखें आप, इतनी बड़ी जो आबादी है, जो मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है, वो गरीब आबादी है। गरीब आबादी का ख्याल करो खुदा के वास्ते, समझे ना। अभी आपको पता है ये रमज़ान का बरकती महीना था, उसके अंदर भी गरीब आदमी ने बेचारों ने जिस तरह अपना जो है गुजारा किया है,
इस दफ़ा आप देख लो, मार्केट के रिपोर्ट भी ले लो, लोगों ने शॉपिंग नहीं की, बहुत कम शॉपिंग हुई है। तो इस वजह से आपको यही अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ लोगों के पास खाना पीना पूरा नहीं होता है, तो शॉपिंग क्या करेगा। बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस के बिल नहीं दे सकते, स्कूलों के जो है फीस नहीं दे सकते, तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ये किस तरह अपना पेट पालेंगे। तो मेहरबानी करके कोई ऐसा सिस्टम लाओ या इस तरह की कोई चीज़ें लाओ जो लोगों को तरक्की मिले और काम पे लगे। अब इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल बंद हो रहा है, दूसरी भी चीज़ें बंद हो रही हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। और हमारा जो फॉरेन एक्शन आता था बाहर से, वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉरेन एक्शन अब देख रहा है कि ये हालात है मुल्क के अंदर, तो वो लोग भी जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में करना चाहते थे वो भी नहीं कर रहे। तो क्योंकि इधर का जो लॉ एंड ऑर्डर भी सही नहीं है, लोग यहाँ प्लॉट लेकर जाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, लोगों की पीछे से ज़मीनें कब्जा हो जाती हैं, तो फॉरेन एक्शन वाले भी बड़े परेशान होते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, जो कोई इन्वेस्टमेंट होता है, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि इतने जाली होते हैं जिनके पेपर भी फैक्ट होते हैं, तो इस तरह कैसे लोग काम करेंगे। पूरे पूरे फैक्टर फाइलें लोग जम ले लेते हैं लोगों की, 2 नंबर की बना के। तो आप देखें, मैं तो जनरल आसिम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है, सरहदों पे भी कर रहे हो, शहर में भी कर रहे हो। जनरल आसिम साहब, थोड़ा सा आप भी लोगों का मदद करें और आए। हमारे जज साहब, वकील साहबों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ फैसले अच्छे करें, लोगों को अच्छे फैसले करें, लोगों को अच्छी मोटिवेट करें। कई फैसले ऐसे हैं, मेरा भी एक हेयरिंग हुई थी नेपरा के अंदर, माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट किया हेयरिंग में हमारे लोगों ने उधर के, मगर अभी तक उसका 2 महीने होने पे आ गए हैं, अभी तक उसका कोई रिप्लाई या जवाब नहीं आया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो 2-2 महीने तक आप जो है हेयरिंग का जवाब नहीं देंगे तो लोगों को ऐसे ही पहले से ही मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो आप मेरे लिए जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा फैसले का हल करें और मेरी हेयरिंग का जो जवाब दें, समझे, जो भी लेटर देना है आप दें, तो मैं काम धंधे पे लगूं। मेरी भी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, मेरा पावर प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है, हम जो गैस के जो पावर प्लांट लगाए हुए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है। हम ये प्लांट कहाँ ले जाएं, समझे ना, गैस मिल नहीं रही और गैस महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट जो है वो पावर ले नहीं रही, तो हम तो टेक एंड पे पे है, तो क्या करें। तो हमको भी कोई, हमारे लिए भी कोई मसला ढूंढे, कोई हल ढूंढे, हम काम धंधे पे लगे, इंडस्ट्रियाँ चलाएं, लोगों को रोज़गार मिले, समझे ना, टैक्स दें, सब चीज़ें दें। हम तो तैयार हैं हर चीज़ काम करने के लिए, और हमको तो इस मुल्क में रहना है। पाकिस्तान जो है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बाप दादाओं ने। 1947 में कायदे आज़म अली ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया, और पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत कुछ है इस कंट्री के अंदर। अल्लाह ताला जो है, सिर्फ हमको कंट्री के सिस्टम को चलाना है। एक दफ़ा कंट्री के सिस्टम को सही करें तो कंट्री, इसके जैसी कोई दुनिया में कंट्री नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी हिम्मत वाले हैं, मेहनत वाले हैं, काम करने वाले हैं। मगर हमारे बस एक प्रॉब्लम है, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हम अपना नारा लगाएं हम पाकिस्तानी हैं, हम अपना जज्बा पैदा करें 65 वाला, इंशाअल्लाह तो बहुत कुछ मिलेगा इस कंट्री से, और हमारे कुछ आने वाले लोग भी बड़े खुश रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये थे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। कई चीज़ों की उन्होंने निशानदही की, क्योंकि जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने जब इंट्रो में भी कहा कि सियासतदान भी है, एक बिजनेसमैन भी है, काफ़ी लोगों
की निशानदेही की, जिस तरीके से पाकिस्तान का हालात हैं, गरीब किस तरीके से चल रहा है, गरीब कैसे जी रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके उन्होंने कहा कि बच्चे किस तरीके से तालीम हासिल करते होंगे, किस तरीके से घर की राशन चलती होगी, कैसे वो अपने तमाम चीज़ों को, तो एक बिजनेसमैन के हवाले से तो अगर मैं दिखाता चलूँ कि देखें इनकी, कि मैंने जिस तरीके से कहा कि अपना सियासत में इनका बहुत बड़ा किरदार है, तो ये फरियाल तारपुर के साथ भी देख सकते हैं, इनकी तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही होगी। और इधर अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो शर्जीना मेमन और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर इधर देखें तो जो कि अभी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमान संभाली हुई है, ये सैयद गनी साहब भी हैं। और अगर इधर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो देखिए तमाम लोगों के इसमें ये सबूत है, तारीख कोई इनकी कोई बनी हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग हैं, सियासतदान भी हैं, तमाम लोग, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी इनका बहुत बड़ा ताल्लुक है, कई सीटों पर रहे हैं और अभी भी जिस इदारे जो वहाँ पे जीते हुए हैं उनके साथ इनकी बड़ी कोऑर्डिनेशन है। अगर सिराज कासिम तेली साहब की अगर बात करूं तो उनके साथ भी इनका बहुत बड़ा ताल्लुक था और उनके बेटे के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इधर अगर हम दिखाएं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, यहाँ पे इनके साथ भी तस्वीर देख सकते हैं कि उनके बहुत अच्छे करीबी मरासिम भी हैं, उनके दोस्त भी थे उनके साथ। और इधर आए तो बिलावल साहब भी, अगर हमारा कैमरामैन आगे बढ़ के दिखा सके तो बिलावल साहब के साथ भी इनकी तस्वीर बनी हुई है। ये तमाम तस्वीरें उनके ऑफिस में लगी हुई और ये मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत काम किया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत काम किया और इलेक्शन भी लड़े। लेकिन आज अगर मैं फिर हमेशा की तरह कहूंगा कि इन्हें फिर बिठाया गया। बिलावल साहब एक बार अपने पुराने लोगों से जरूर मिले, क्योंकि वो आपके बड़े काम के लोग हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा तजर्बा है सियासत का भी, पाकिस्तान के बारे में भी समझते हैं, इलाके को भी समझते हैं, पाकिस्तानी लोगों को भी समझते हैं, कराची के खास तौर पे, जो कराची पूरे पाकिस्तान का हब है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर इसी को हम बिल्कुल ऐसी मेहनत पे लाके खड़ा कर दूंगा और तमाम जो जिस तरीके से हम कहते हैं कि बिजनेसमैन पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, अगर उस हड्डी को आप तोड़ देंगे तो यह किस तरीके से पाकिस्तान चलेगा, किस तरीके से अवाम चलेगी, कैसे काम चलेगा। तो आपने तमाम गुफ्तगू हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की सुनी, ताकि जो उनकी हकीकत थी वो उन्होंने बयान किया। कैमरामैन जफर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।